Hi students, in previous period we discussed about the non-essential whorls, accessory whorls or helping whorls of the flower. And today we are directly going to discuss about the essential whorls of the flower, and they are androecium and gynoecium. Why they are called so? Why androecium and gynoecium are called as the essential whorls? Because without these whorls, without the role of these whorls, yes, sexual reproduction process is just impossible. Means for the successful sexual reproduction, yes, role of androecium and gynoecium is yes very important. These two sex organs are must for the happening of yes sexual reproduction process. Hence we call these whorls as yes नॉन इसेंशियल नहीं बल्कि इसेंशियल व्हर्ल्स. तो जिनके बिना रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, रिप्रोडक्शन में जिन व्हर्ल्स की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ऐसे व्हर्ल्स को हम बोलते हैं इसेंशियल व्हर्ल्स. एंड दीज आर टू एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. नाउ लेट्स explain firstly about the androecium. Androecium is the third whorl of the flower. पहला point, yes, androecium is the third whorl of the flower. Why third? Because first one is the calyx, second one is the corolla, and third one is the yes androecium. So androecium is the third whorl of the flower. It is male reproductive organ. Two organs are there, male and female reproductive organs. Yes, among them, yes, androecium is the male reproductive organ. Members of androecium are stamens. Members of androecium are stamens, and stamens might also be free or fused like the petals and sepals. Yes, now whenever members of androecium means the stamens are free, whenever stamens are free, then the condition is described as polyandrous. When stamens are free, then condition is described as polyandrous, and when stamens are fused, then the condition is described as synandrous or synandrous, you can say. So stamens when free, polyandrous. Polystaminous नहीं बोलना है, क्योंकि हमने पॉलीसेपेलस बोला था, पॉलीपेटलस बोला था, लेकिन यहाँ पॉलीस्टेमेनस नहीं बोलना है, इंस्टेड बोलना है पॉलीएंड्रस. When stamens are fused, then गैमो शब्द यूज किया था, गैमोसेपेलस बोला था, गैमोपेटलस बोला था, लेकिन अब यहाँ गैमो वर्ड यूज नहीं करना है, उसकी जगह पे वर्ड यूज करना है SYN यानी कि सिन और साइनैंड्रस. So when stamens are free, the condition is called as polyandrous, and when stamens are fused, then the condition is called as synandrous or synandrous. Then each stamen has two parts. हर स्टेमन के कितने मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं? दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. कुछ बुक्स में तीन पार्ट्स भी दिए हुए हैं. हाँ, तीनों पार्ट्स मैं समझाती हूँ आपको. अभी उसके लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम पे फोकसिंग करना होगा, और डायग्राम फोकस करके मैं आपको स्टेमन के है ना मेन दो इंपॉर्टेंट और वैसे इन टोटल 3 पार्ट्स समझाती हूँ. सो उसके लिए यस ये डायग्राम है हमारी स्टेमन की ड्रॉ की हुई. सो यस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द स्टेमन. बेसल, बेसल यानी निचला हिस्सा. स्टराइल यानी जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है ऐसा, है ना. बेसल, स्टराइल. और स्टॉक लाइक पोर्शन, स्टॉक लाइक पोर्शन यानी इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन. सो बेसल यानी निचला, स्टराइल यानी जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है ऐसा, और स्टॉक लाइक यानी लॉन्ग और सिलेंड्रिकल. ऐसे पार्ट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं फिलामेंट. देखो स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक का पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है फिलामेंट को. उसके बाद यस अपर सैक लाइक पार्ट. अपर सैक लाइक पार्ट इज कॉल्ड एज द यस एंथर. जो सैक लाइक पार्ट है वो कहलाता है एंथर, और एंथर के अंदर बाद में प्रोड्यूस होंगे पोलन ग्रेन्स. एंथर के अंदर प्रोड्यूस होंगे पोलन ग्रेन्स. सो यस फिलामेंट, connective and anther. Now what is the connective? Connective is that part which connects the two anther lobes, है ना. यहाँ ऐसे दो anther lobes होते हैं, और इन दो anther lobes को कनेक्ट करने वाला पार्ट जो है वो होता है yes connective. Connective. So basal, sterile, stalk like part is called as the filament. Upper yes sac like part is called as the yes anther, and within the anther yes there will be the production of pollen grains in future. Now about the connective, yes I will show you the exactly what part is called as connective. Now see, black border I am going to give, and yes this part exactly is called as the connective. Now these are the two different anther lobes,
एंथर लोब 1, एंथर लोब 2, और इन दो एंथर लोब्स को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है कनेक्टिव, वो पार्ट होता है कनेक्टिव। सो तो कनेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट, फिर भी एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि डायग्राम में लिखा हुआ है। सो द बेसल स्टेराइल स्टॉक लाइक पार्ट इज फिलामेंट एंड अपर सैक लाइक पार्ट इज कॉल्ड एज एन anther, and within the anther in future there will be the production of pollen grains. There will be the production of, yes, pollen grains. Pollen grains. Now upper sac like part anther, lower stalk like part filament, essential part पहले ही समझा चुकी हूँ, विदाउट जिसके रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता। देन फंक्शंस ऑफ एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का मेन फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन्स। मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो सैक लाइक पार्ट होता है ऊपर का एंथर, उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन्स। हेंस द सैक लाइक पार्ट ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड एज एन एंथर, एंड एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स which later on produces male gametes. इन्हीं पोलन ग्रेन से आगे जाके क्या बनते हैं? यस, मेल गमीट्स बनते हैं, और यही मेल गमीट्स फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होते हैं, यानी कि फीमेल गमीट के साथ फ्यूज होते हैं, और झाइगोट जो कि नए प्लांट के शरीर की पहली सेल है वो बनती है ना। उसके डिटेल्स तो बाद में आएंगे ही, है ना। पूरा 1 महीना ये चैप्टर हमें पढ़ना है लगभग। तो तब तक के लिए स्टेमन सभी को समझ में आया मेरे हिसाब से। अब मैं मूव होती हूँ गायनोशियम पे। गायनोशियम विच इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गायनोशियम इट इज द फोर्थ और इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना। फ्लावर का बाहर से अंदर आते हुए चौथा पार्ट, और फिर या कहो कि सबसे अंदरूनी पार्ट, सबसे अंदर का पार्ट, उसे हम कह रहे हैं यस गायनोशियम। सो गायनोशियम इज द फोर्थ इनरमोस्ट पार्ट। इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव व्रल। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव व्रल। अब देखो बच्चों, साइंस में एंड्रोशियम का साइन होता है ये 0 और 0 के ऊपर एक ऑब्लिक एरो, ये मेलनेस का साइन होता है साइंस में, और 0 और 0 के नीचे प्लस, है ना, ये साइन होता है फीमेलनेस का, है ना। 0 के ऊपर ऑब्लिक एरो वो साइन होता है मेलनेस का, और ये साइन होता है यस फीमेलनेस का, 0 और उसके नीचे प्लस। नाउ इट इज द फोर्थ एंड इनरमोस्ट पार्ट यू कैन से ऑफ द फ्लावर। देन इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव व्रल। जैसे एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव व्रल है, वैसे गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव व्रल। अब गायनोशियम के मेंबर्स कौन है? गायनोशियम के मेंबर्स है कार्पेल्स। गायनोशियम के मेंबर्स है कार्पेल्स। और कार्पेल्स भी फ्री और फ्यूज हो सकते हैं, तो जब भी कार्पेल्स फ्री होते हैं, यहाँ एपो वर्ड यूज करना है, पॉली वर्ड यूज नहीं करना है। तो फिर व्हेनेवर द कार्पेल्स आर फ्री, यस द कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड एज एपोकार्पस। उस कंडीशन को हम डिस्क्राइब करते हैं एपोकार्पस। और व्हेनेवर द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, वी डिस्क्राइब दैट कंडीशन एज सिनकार्पस। हम उस कंडीशन को क्या डिस्क्राइब करते हैं? सिनकार्पस डिस्क्राइब करते हैं। सो व्हेन कार्पेल्स आर फ्री, कंडीशन इज कॉल्ड एज एपोकार्पस, एंड व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, कंडीशन इज कॉल्ड एज यस सिनकार्पस कंडीशन। नाउ यस गायनोशियम विथ 1 कार्पेल। देखो यहाँ हमने पॉली की जगह पे एपो वर्ड यूज किया है ना, और गैमो की जगह पे यहाँ हमने सिन वर्ड यूज किया है। ये ध्यान में रखना अच्छे से, नहीं तो हर शब्द को पॉलीगैमो ऐसे नहीं करना है। ओके, सो तो व्हेन फ्यूज yes syncarpus and when free apocarpus. Now another terms जो सिर्फ गायनोशियम के लिए जनरली अप्लाई होते हैं वो है कि अगर गायनोशियम एक ही कार्पेल के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, यानी किसी फ्लावर में गायनोशियम के फॉर्म में सिर्फ एक ही कार्पेल होता है, जैसे मैंने प्रीवियस पीरियड में आपको धतूरा का दिखाया, तो धतूरा के फ्लावर में सिर्फ एक ही कार्पेल होता है, और इसीलिए धतूरा के फ्लावर को क्या कहते हैं? मोनोकार्पेलरी, है ना। धतूरा के गायनोशियम को कहते हैं मोनोकार्पेलरी गायनोशियम, है ना। यस 1 कार्पेल मोनोकार्पेलरी गायनोशियम। If 1 कार्पेल is there, मोनोकार्पेलरी गायनोशियम। और अगर कुछ पर्टिकुलर फ्लावर्स में एक से ज्यादा कार्पेल्स भी हो सकते हैं, कार्पेल की संख्या, हर प्रकार के ऑर्गन के मेंबर्स की संख्या फ्लावर टू फ्लावर चेंज हो सकती है, यानी कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पेल सभी की संख्या फ्लावर टू फ्लावर क्या होती जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। तो अगर एक ही कार्पेल रहा तो क्या वर्ड यूज करना है? मोनोकार्पेलरी, क्योंकि मोनो और यूनी का मतलब होता है एक, डाई और बाय का यूज होता है 2, DI डाई, BI बाय। डाई और बाय का यूज मतलब होता है 2, मोनो और यूनी का मतलब होता है 1, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7 और ऑक्टा 8। आगे भी मैं पढ़ाऊंगी किसी दिन ये सब चीजें आराम से। तब तक के लिए मोनो यानी 1, पॉली यानी मेनी,
So if gynoecium is showing only one carpel, it is monocarpellary condition, and if gynoecium is represented by many carpels, then the condition becomes polycarpellary. Now everybody knows it is an essential whorl of the flower. Why? Because without which reproduction is not possible. उसके बाद अब हम पार्ट लेते हैं, कार्पेल के पार्ट डिस्कस करते हैं। कार्पेल्स के पार्ट डिस्कस करने के लिए फिर से हमें कहाँ मूव होना होगा? यस, फिर से डायग्राम पे मूव होना होगा, जो बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ करके रखी हुई है कार्पेल की यहाँ, है ना, तो उस पे मूव होंगे हम और एक एक पार्ट डिस्क्राइब करेंगे। अब पहला जो लोअर पार्ट है वो है ओवरी। लोअर पार्ट जो है वो है ओवरी। कार्पेल हैज हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। यस, ओवरी। बेसल सोलन पार्ट, बेसल क्यों? क्योंकि नीचे है, नीचे है इसलिए बेसल। बेसल सोलन पार्ट ऑफ द यस कार्पेल इज कॉल्ड एज द ओवरी। बेसल सोलन पार्ट, बेसल याने निचला हिस्सा, बेस का हिस्सा, और सोलन याने फुला हुआ, फुगीर म्हणतो आपण मराठीमध्ये। तर बेसल सोलन पार्ट ऑफ द ओवरी कार्पेल इज कॉल्ड एज द ओवरी। देन यस, मिडल इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल पार्ट, ये पार्ट जो है मिडल elongated and cylindrical part. Middle elongated and cylindrical part is called as the style. Middle elongated and cylindrical part is called as the style, and upper receptive part is called as the stigma. Upper receptive part is called as the stigma. तो ये स्टिग्मा टर्मिनल पार्ट भी बोलते हैं स्टिग्मा को। सो टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा। अब ये जो पोलन ग्रेन्स एंथर में बनेंगे, एंथर फूटने के बाद यही पोलन ग्रेन्स पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू कहाँ डिपॉजिट होंगे? स्टिग्मा पे। और क्योंकि स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, इसलिए हमने डिस्क्राइब किया अपर रिसेप्टिव पार्ट कॉल्ड एज द यस स्टिग्मा। और ये जो प्रोसेस होती है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ये कहलाती है यस पॉलिनेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? यस पॉलिनेशन कहते हैं। खैर पॉलिनेशन के बारे में तो हम अपने नेक्स्ट पीरियड में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, है ना, इसलिए अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी। अभी फंक्शन लेते हैं गायनोशियम का। गायनोशियम प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स। देखो यहाँ मैंने ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ओवरी के अंदर, और ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर जो है ये रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, कभी एक होता है कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। अब ये डिपेंड किस बात पे करता है कि उस प्लांट को लगने वाला जो फल है, फ्रूट है, वो फ्रूट सिंगल सीडेड है या मल्टी सीडेड। अगर आम जैसा, मैंगो जैसा सिंगल सीडेड फ्रूट है तो उसके ओवरी के कार्पेल में एक ही ओव्यूल रहेगा। क्या कहा मैंने? कि अगर मैंगो जैसा सिंगल सीडेड फ्रूट है तो उसके ओवरी में एक ही ओव्यूल रहेगा, और अगर पपाया जैसा मल्टी सीडेड फ्रूट है तो उसके ओवरी में बहुत सारे सीड्स रहेंगे। यानी कि फल का सिंगल सीडेड या मल्टी सीडेड होना किस बात पे डिपेंड करता है? हाउ मेनी यस ओव्यूल्स आर देयर इन द ओवरी ऑफ द कार्पेल ऑफ दैट फ्लावर, है ना, इस बात पे डिपेंड करता है। तो फंक्शन में बता रही हूँ गायनोशियम का। इट प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स कंटेनिंग द फीमेल गमेट्स। उन्हीं ओव्यूल के अंदर फिर फीमेल गमेट्स बनते हैं। यहाँ एंथर में बने हुए मेल गमेट्स, उधर एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन से डेवलप हुए मेल गमेट्स, और उधर से फीमेल गमेट, इन दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा झाइगोट, और फिर झाइगोट का रिपीटेड माइटोसिस होकर डेवलप होगा पूरा कंप्लीट प्लांट, है ना। तो इसमें से आधा तो हमारा कल एक्सप्लेन हुआ था, लेकिन आज हमारे ये 2 इसेंशियल व्हर्ल्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। अब आज एक थोड़ा सा हटके पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, और वो है पेरियंथ। पेरियंथ, अब क्या है ये पेरियंथ? यस, व्हेन कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिफरेंशिएटेड। अगर किसी फूल में आपको कैलिक्स और करोला अलग अलग देखने को नहीं मिल रहे हैं एज अ सेपरेट ऑर्गन, तो फिर इसका मतलब कि नेचर ने कैलिक्स और करोला को क्या कर दिया है? फ्यूज कर दिया है। और जब नेचर कैलिक्स और करोला को फ्यूज कर देता है तो वो जो ऑर्गन बनता है वो कहलाता है पेरियंथ। यानी कि हम पेरियंथ को कैलिक्स और करोला का फ्यूजन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ डेफिनेशन डिटेल में लिखी हुई है मैंने बोर्ड पे। यस, व्हेन calyx and corolla are not differentiated from each other and together form one set of whorl, then that whorl is described as perianth. जब कैलिक्स और करोला हम अलग अलग नहीं देख पाते हैं किसी फूल में, इसका मतलब कि नेचर ने उन्हें फ्यूज करके एक नया जो पार्ट है वो बनाया है, और जिसको कि हम नाम दे रहे हैं पेरियंथ। पेरियंथ। सो अब ये पेरियंथ के मेंबर्स क्या है? क्योंकि हम उन्हें सेपल भी नहीं बोल सकते और पेटल भी नहीं बोल सकते, तो अब पेरियंथ के मेंबर्स क्या है? पेरियंथ के मेंबर्स है टैपल्स। सी,
पेरियन के मेंबर्स है टैपल्स, है ना। कैलिक्स के सेपल, करोला, पेटल, एंड्रोशियम, स्टेमन, गाइनोशियम, कार्पेल और पेरियंथ, टैपल्स, ये सब आपको लर्न करके रखना है। सो टैपल्स भी फ्री या फ्यूज हो सकते हैं। Whenever tepals are free, condition is called as polyphylous। देखो polytepalous नहीं बोलना है, जैसे कि आप यस पॉलीपेटेलस बोलते हो, पॉलीसेपेलस बोलते हो, वैसे यहाँ पॉलीटेपेलस नहीं बोलना है, क्या बोलना है, पॉलीफाइलस। क्या बोलना है, पॉलीफाइलस। सो tepals when free, then the condition is called as polyphylous, and tepals when fused, then condition is called as gamophilous। Tepals when fused, condition is called as gamophilous। Polyphylous, tepals free, gamophilous, tepals fused। It is also non-essential whorl of the flower। सीधी बात है बच्चों, क्योंकि ये कैलिक्स और करोला का फ्यूजन है और कैलिक्स और करोला दोनों नॉन इसेंशियल है, तो फिर ये भी कैसा हुआ, नॉन इसेंशियल हुआ। इसके बगैर भी रिप्रोडक्शन मतलब हो सकता है, लेकिन इसके प्रेजेंस में और अच्छे से होगा, ठीक है। सो इसके दो एग्जांपल्स है। एक एग्जांपल है अनियन यानी की प्याज, मराठीमध्ये आपण त्याला कांदा म्हणतो, आणि ट्यूबरोज आपण मराठीमध्ये निशिगंधा म्हणतो, हिंदीमध्ये बहुतेक त्याला रजनीगंधा म्हणतात, ठीक है। तो टू एग्जांपल्स आर देयर। अनियन का फ्लावर्स में कभी ना कभी जब सीजन आएगा तब दिखाऊंगी, ट्यूबरोज का भी जब बहुत जल्दी दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद अब आती है बारी पेरियन के फंक्शंस की। अब कैलिक्स और करोला के जो कंबाइंड फंक्शंस है वही लाइन से लिखते जाओ। कैलिक्स और करोला का जो कॉमन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन, है ना, और करोला का जो स्पेशल फंक्शन है वो है अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। तो कैलिक्स और करोला के कंबाइंड फंक्शंस आप लिख सकते हो ये पेरियंथ व्हर्ल के लिए। तो इस प्रकार से प्रोटेक्शन, अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, फोटोसिंथेसिस भी ऐड कर सकते हो क्योंकि वो भी आ सकता है उसमें, और इस प्रकार से प्रोटेक्शन, अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, और तीसरा भी डाल सकते हो आप फोटोसिंथेसिस, है ना, ये भी फोटोसिंथेसिस, ये भी फंक्शन है तीसरा ये पेरियन का। तो इस प्रकार से कैलिक्स और करोला के फंक्शन जोड़ दो तो वो हो गया ये पेरियन का फंक्शन। अब इसके आगे का पार्ट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।